Assalamu alaikum girls. Today we are going to discuss our new chapter, which is chapter number 5, vectors. As we have discussed that scalars and vectors are the physical quantities, two types of physical quantities. In the previous chapter we have discussed about the scalars, and in scalars the quantities are completely specified by the magnitude and unit. No direction is mentioned in scalar quantities. Only the quantities are specifically specified by their magnitude. What is magnitude? The number having an appropriate unit representing any scalar quantity is known as its magnitude and unit, but there is no direction. And vector are the quantities which have magnitude, a number, a numeral value, and unit, and the direction is also mentioned. Direction is also given. Without mentioning the direction, we cannot say that the quantities are vectors. Mentioning direction is important in vectors. So for example, the scalar quantities are mass, time, speed, and etc. And vector quantities are weight, force, torque, and momentum. We can simply add, subtract, multiply, and divide the vectors by simple arithmetic or mathematical rules, but in vectors we cannot simply add or subtract or divide or multiply the vectors. उसके लिए कुछ different rules होते हैं जो हम अब इस chapter में पढ़ेंगे. So in this chapter we are going to discuss about vectors only, and the examples of vector, representation of a vector, how can we represent graphically, how can we represent the vector symbolically, and in this chapter we are going to discuss the addition of vector, subtraction of vector, types of vector, etc. Okay, so starting from the representation of a vector, how can we represent a vectors? स्केलर्स को तो हमने कहा कि अगर मास है 2 kg तो हमने सिंपली लिख दिया 2 kg. 2 उसका मैग्नीट्यूड है एंड kg इज़ द यूनिट. अब लेकिन यहाँ पर कोई भी हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की. टाइम के लिए भी ये हो गया कि अगर मैंने 2 आवर्स लिखना है या 5 सेकेंड्स लिखना है तो मैं 2 जो है वो मैग्नीट्यूड है और आवर्स का जो है वो यूनिट है. अगर 5 सेकेंड्स लिखना है तो 5 इज़ द मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, वैसे ही वो स्पेसिफाई हो रहा है. लेकिन कुछ चीज़ें जो कुछ क्वांटिटीज़ स्पेसिफाई नहीं होती उनको हम किस तरह एरो से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं. उसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा होती है बाय अ लेटर एंड एन एरो. लेटर उसका सिंबल होगा और एरो क्या शो कर रहा होगा? डायरेक्शन शो कर रहा होगा. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. फर्स्ट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एंड सेकेंड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. तो सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय राइटिंग अ लेटर सिंपली, जो उसका सिंबल होगा. लाइक फॉर वेट we can write W, like for velocity we can write V, and force we can write F. So symbolically we just use a, यहाँ पे मैंने W लिख दिया, सॉरी, ये V है velocity का. for velocity it is V. so for force मैंने यहाँ पे क्या शो किया? for force I use F here as a symbol, and arrow represents that it is a vector quantity, that some direction is mentioned for force. टॉर्क, अब ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्शन इसी दफ़ा एरो में हो, बट रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एरो लगाते हैं. फिर फर्दर जब उसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन बताते हैं कि कहाँ डायरेक्शन मेंशन है, लेकिन एरो सब पर इसी तरह लगता है टूवर्ड्स ईस्ट. ये एरो डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा, ये एरो ये शो कर रहा है कि ये दिस क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स को एफ एरो से शो किया. तो symbolically we can represent a vector by just writing a letter or a symbol, and by putting an arrow over that letter. Okay, so just writing a letter and by putting an arrow over it we can symbolically represent a vector. Now graphical representation of a vector, we can graphically represent a vector by an arrowhead line segment. and line segment आपको पता है कि line segment में 2 पार्ट्स होते हैं. एक लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है इस तरह से, एक ये इसका टेल पार्ट होता है और ये इसका हेड पार्ट होता है एक लाइन सेगमेंट में. तो दिस पोर्शन, दिस एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, एंड दिस टेल पार्ट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द
then length of the vector represents the magnitude of the vector, magnitude और number जो भी show करना होगा. अब if in case जैसे मैं आपको example दूँ कि अगर मैं यहाँ torque की बात कर रही हूँ या मैं let's suppose velocity की बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ 20 meter per second is the velocity, is the initial velocity. तो 20 meter per second को जब मैं represent करूँगी तो the length of this arrow, the length of this line segment, sorry arrow नहीं, the length of this line segment represent 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, 20 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी. और अब इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है तो दिस एरो शोज़ द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. तो ये कम्प्लीटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट एरो हेड लाइन सेगमेंट, we are going to have an arrowhead line segment to represent a vector in which length of the line represents the magnitude and unit and the arrow tip represent the direction. Arrowhead represent the direction. Now how can we graphically represent a vector? Here are some examples to show you. अगर आप उसको किसी भी वेक्टर को खुद से बनाना लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जांपल लाइक वेलोसिटी ऑफ एन एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट. आपको एक सिचुएशन दी है जिसमें एरोप्लेन की वेलोसिटी बताई है, इट इज़ 500 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट. तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 500 किलोमीटर्स पर आवर ग्राफिकली अपने कॉपी पे, अपने रजिस्टर पे कहीं 500 किलोमीटर पर आवर को ड्रॉ कर सकें? इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप 500 किलोमीटर्स कहीं ड्रॉ करें. जब ग्राफ करते हैं तो हम हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हम स्केल चूज़ करते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर्स हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, वो तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो बहुत बड़ा अमाउंट है. तो 500 किलोमीटर पर आवर के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपना डायरेक्शन बता दी, यहाँ पर डायरेक्शन बता दी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे पास डायरेक्शन स्केल है. और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम स्केल चूज़ करेंगे. तो हम ये कहेंगे इसके यहाँ पर आप कुछ और भी सपोज़ कर सकते हैं. मैंने ये सपोज़ किया 100 किलोमीटर्स पर आवर, लेट्स सपोज दैट इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें उसे ग्राफ पे बनाना है तो हमें उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड 500 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. If 100 kilometer is equal to 1 centimeter, 500 kilometer per hour is equal to 5 centimeter. So we just draw a line of 5 centimeter and we call it A and B. दोनों points इसके जो कह दिया हमने A and B points हमने कह दिया. और फिर जो 5 centimeter जहाँ end हो रहा था वहाँ हमने towards east था तो हमने उसको towards east ही draw किया और arrow लगा के यहाँ east लिख दिया. अब अगर यही वाले situation में अगर आपके पास ये होता velocity of an aeroplane 500 किलोमीटर पर आवर towards ईस्ट के बजाय वेस्ट होता तो आप इसी तरह से ये लाइन ड्रॉ करते और आप आ जाते इस तरफ एरो पे और यहाँ आप लिख देते वेस्ट. ठीक है, और अब आपका ये हो जाता ओ ए या ए बी, आप जो भी लिखना चाहें. अगर आप ए बी ही से याद रख रहे हैं तो आप ए बी से याद रख लें. ठीक है, तो ये वही हो जाता 5 सेंटीमीटर, बट डायरेक्शन क्या हो जाती, चेंज हो जाती है और अब एरो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता. इसी तरह अगर हम नॉर्थ में करते तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते और साउथ में करते तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करते. फिर अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस. अब यहाँ पर 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस भी शो किया है, यानी एंगल हमेशा किस चीज़ को शो करता है, डायरेक्शन को. ठीक है, जितना एंगल होगा वो शो करेगा कि कितनी डायरेक्शन है. अगर 45 डिग्री यहाँ है और फिर 60 डिग्री यहाँ है, 80 डिग्री यहाँ है, 90 यहाँ है, तो ये हमेशा इसकी फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा. ठीक है, तो अब फिर हमने यहाँ पे अपने हिसाब से स्केल चूज़ कर लिया. आप अपने हिसाब से भी कुछ और स्केल चूज़ करके देख सकते हैं. मैंने स्केल चूज़ किया है 800 न्यूटन के लिए. अगर मैं 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करती तो फिर 8 सेंटीमीटर की बहुत बड़ी सी लाइन ड्रॉ होती. तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने हिसाब से ये स्केल चूज़ किया. 200 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो 400 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 600 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 800 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको. सो इफ़ 800 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू आर स्केल, देन इफ़ दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस और हम यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करें तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके यहाँ मार्क करेंगे और फिर वहीं उसी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके हम 4 सेंटीमीटर की लाइन
ज्वाइन कर लेंगे और 4 सेंटीमीटर पे उसको इंटरसेक्ट करेंगे। और वी आर सेइंग दैट OA इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटिंग फोर्स हेयर। मैंने एरो इसीलिए शो किया है कि OA इज़ फोर्स। यू कैन राइट F ऑल्सो, आप यहाँ F भी लिख सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इट इज़ OA, सो मैंने यहाँ पे लिखा OA इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू 800 न्यूटन। दिस इज़ 800 न्यूटन, दिस इज़ नॉट वर्किंग, 800 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये 800 न्यूटन को रिप्रेजेंट करा है। सो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन मेंशनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड choosing of scale is also important, कि how we choose the scale and then we are going to draw it on our copy or a graph एंड देन अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसको ऐड करना होता है, या अभी आगे आप देखेंगे कि सिर्फ एक सिंपल लाइंस नहीं होंगी और फर्दर इसमें वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब आखिर में आंसर करना होता है ना, तो यही 5 सेंटीमीटर को दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, या जो भी आंसर आता है उसको दोबारा इसी तरह से इसकी कन्वर्जन दोबारा से यहाँ कर लेते हैं। और हम ये लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर अगर लेट्स से क्या आंसर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि इफ़ 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 6 सेंटीमीटर इज़ द आंसर एंड 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। फिर उसको फर्दर वापस अपनी कन्वर्जन में भी लाना होता है। तो सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, symbolic method and graphical representation of a vector.